تو سر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، میرے آئے ہوئے مہمان دوسرے جو بیٹھے ہیں وہ بھی میرے ساتھی ہیں اور وہ بھی بڑے ویلفیئر کرتے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، تو لہٰذا یہ دیا جو حاجی سیف اللہ صاحب نے جلایا ہے اس کو ہم نے بجھنے نہیں دینا ہے، اس کو ہم نے بجھنے نہیں دینا ہے، اس کو جتنے تیل کی ضرورت پڑے، تیل کی بجائے ہمارے خون کی بھی ضرورت پڑے انشاءاللہ ہم دیں گے اور اس کو ہم چلائیں گے، کامیاب کریں گے۔ اور کامیاب تب ہوا جب جیسے میری بچیاں ہی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی بیچاری بڑے شوق سے بیچاری آتی ہیں، اپنا کوئی ٹائم ضائع نہیں کرتی، 11 بجے بلائیں 11 بجے آتی ہیں، 3 بجے کا ٹائم دے 3 بجے آتی ہیں۔ یہ بھی ان کی مہربانی ہے بچوں کی کہ وہ اپنے والدین کا نام اونچا کرنے کے لیے، رحمانی برادری کی پہچان کروانے کے لیے آج یہاں پر ایک گلدستے کی شکل میں آگے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اور میں نے سر کہ میں ان بچیوں کو تعلیم دوں تاکہ جب یہ بچیاں پڑھ جائیں گی پھر اپنے والدین کو سمجھا لیں گی، تو یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خیال دیا۔ اب جب مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خیال دیا کہ میں جس کے پاس جاؤں گاؤں میں کہ بولوں میں نے بچی پڑھانی ہے مجھے بچی دیں، تو وہ بولے کہ نہ ہم بغیرت ہیں، نہ ہم کنجر ہیں، نہ ہم دلال ہیں کہ ہماری بچیاں پڑھیں اور ہم ان کی کمائی کھائیں۔ تو میں بس کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں، بڑا ان کو سمجھاتا تھا لیکن وہ بات سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو میں اسلام آباد میں ہوتا تھا، گاؤں آتا تھا 1 مہینے بعد، تو میں جب بھی گاؤں آتا تو میں گھر گھر جاتا اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتا، لیکن وہ کوئی بات سنتا نہیں تھا۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ میں ایک گھر گیا تو ان کا ایک بچہ اتنا سا، میں نے بھی رستے میں یہ بات خالق صاحب کو سنائی ہے، تو جب وہ آئے میرے پاس تو اس کی ماں نے کہا جی حاجی صاحب آئے ہیں، آؤ بچوں ملو۔ تو مجھے ملے تو میں نے کہا یہ بچہ کس کلاس میں پڑھتا ہے؟ تو اس ماں نے بڑے شوق سے بتایا کہ 6ٹھی کلاس میں پڑھتا ہے۔ میں نے کہا ماشاء اللہ جی جوان ہو گیا ہے۔ کہتی حاجی صاحب میں نے اس کی شادی استانی سے کرانی ہے۔ بس یہ بات اس کی کرنی تھی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے کلک کر دیا ادھر۔ میں نے فوراً اس کی بچی کو بلایا، میں نے کہا آؤ بھی بچی، ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، آپ کے بھائی کے لیے تو استانی آئے گی۔ میں نے کہا اس بیوی عورت سے کہا کہ اس بچی کے لیے اگر رشتہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی استانی چاہیے، تو پھر وہ حاجی صاحب میں نے یہ سوچے ہی نہیں ہے۔ بس اس بات سے اس کو میں نے موٹیویٹ کیا، انہوں نے ہمیں ایک بچی دے دی۔ یہ بات کر کے ہر گھر میں نے جا کر بات کی، ہر گھر یہی بات کی تو 8 بچیاں مل گئی۔ اب بات لمبی ہو جائے گی، آپ لوگ بور ہو جائیں گے۔ میں نے کام شروع کر دیا، استانی نہ ملے، پھر میں استانی میرا حافظ آباد سے چیچا وطنی سائی وال سے استانی لے کر گیا، لمبی سٹوری ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ پھر وہ استانی وہاں رکتی نہیں تھی، عورتیں جو آتی تھیں بچیوں کی وہ ان کی بےزتی کر جاتی تھیں بڑی کہ میری بچی کو آپ نے کیوں ڈانٹا ہے۔ تو وہ کرتے کراتے جناب اللہ آج کیا سٹیج آئی ہے کہ میں نے اب بچیوں کے لیے اس ٹائم جو موجودہ صورتحال ہے شارٹ کٹ کرتا ہوں، لمبی سٹوری ہے۔ اس وقت میں آپ بچیوں کو دینی تعلیم دے رہا ہوں، ناظرہ پڑھتی ہیں، تجوید پڑھتی ہیں اور درس نظامی کورس کر کے BA کرتی ہیں اور حافظ قرآن بن رہی ہیں۔ اوپر ہوگی تصویریں بھی جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، اللہ جن بھائیوں نے اللہ اس تیرے دین کا دروازہ کھولا ہے، دین اسلام کی تعلیم کے لیے بندوبست کیا۔ 4 سال پہلے ہمارے کو یہ پلیٹ فارم ملا، اس کے بعد ہمارے کو نایاب ہیرے ملے، عبدالخالق بھائی، کیا بات ہے۔ پہلوان لوگ یہی سوچتے ہیں جو کام نہیں کر رہے ہیں۔ میں یہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں ان سے کہ وہ یہ سوچیں کہ یار ہمارے کو بلا کے وہ ہمارے اوپر تنقید کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ہم لاڑکانہ گئے، حادثہ ہوا، بس پلٹی ہوئی، سندھی کمار تھے، ملے بیٹھے بات چیت ہوئی، عبدالرحمان بھائی ہیں، ان کے بھائی کو ایک مسئلہ ہو گیا، والد کے لیے 20 کی ضرورت پڑی۔ عبدالرحمان نے مجھے کہا مادر، تو
मैंने अब्दुल खालिक भाई को कहा। अब्दुल खालिक भाई ने ये कहा कि मेरा ये एड्रेस है, आप इस बच्चे को दे भेजो, उसका हर मसला हल होगा। उसको अगर वो नौकरी करना चाहता है तो मेरे ऑफिस में वो नौकरी भी करे, ठीक है। तो रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट ने हमारे कड़ी से कड़ी जोड़ा। जो लोग हमारे ऊपर तनकीद करते हैं, चेयरमैन साहब की बात को मैं आगे लेकर चलूँगा कि 2-4 साल बाद है ना, जब चल पड़ते हैं तो बोलते हैं सारे कुछ हम ही हैं, काएगा चेयरमैन, काएगा नायब सदर, बिल्कुल काएगा फलाना, काएगा भाई वो। तो मैं वो दोस्त काम नहीं कर रहे हैं, नवाबकिया में भी, सांगड़ में भी, बांदी में भी, जो भी जहाँ पर भी जो लोग हैं तनकीद ज़्यादा कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ हाथ जोड़ के दरखास्त ये करूँगा कि बिस्मिल्लाह करें, छोटा सा स्टार्ट लें। ये नहीं कि आज हम अगर 20-25 लोग इधर जुड़े हुए हैं, हमारे पीछे मुखालफत नहीं है, होती है और हमेशा रहती है। अगर कोई भी तंजीम है, कोई भी बिरादरी है, वो ये ना सोचे कि वो बिल्कुल 100% सही चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। पर जो भी मेरे दोस्त आए हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वो आए, उन्होंने हमें इज्जत बख्शी, उनकी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं पंजाब में कभी किसी के पास नहीं जाता, तो मैं सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में, प्यार में आया हूँ कि इतने दूर दराज बैठे हुए हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तब इंशाल्लाह खालिक साहब हैं, ये हमारे कराची डिवीज़न के, और जुल्फ़कार साहब हैं। अब देखें ना, मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ छोटा सा। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट क्या करता है, कोई हफ़्ता पहले एक ग्रुप में लगी खबर, एक बंदे ने रिक्वेस्ट की कि मेरा बेटा कराची में है तो मजदूर हूँ और मेरा बेटा है, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया मेरे पास पैसे नहीं है, कोई है हेल्प करने वाला। जब मैंने पढ़ा तो मैंने उसको फ़ोन किया, तो उसने कहा जी मेरे पास जुल्फ़कार साहब पहुँच भी गए हैं। चलो, मैं इतना खुश हुआ। फिर जुल्फ़कार साहब ने उसकी इमदाद की और उसके बेटे को अल्लाह किया बराम आ गया है, लाखों रुपए का था, डिस्काउंट भी करा दिया। तो ये रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट करता है। अगर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट ना होता तो ये ना करता। अभी खालिक साहब हैं, ये सारा खर्चा कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, खाने खिला रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं। तो बस अब उनको अल्लाह ताला ने दी हुई है, वो कर रहे हैं। अब इनमें जैसे अभी डॉक्टर शफी साहब, इमरान साहब और ये निसार और सारे आसफ साहब लगे कर रहे हैं, ऐसे आप भी बिस्मिल्लाह करें। पर इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे। हमारे पास जो भी आया आपके लिए है। हम आपसे ना वोट मांगते हैं, ना पैसे मांगते हैं, ना आपको कोई लालच देते हैं। हम आपको कोई लालच नहीं देते, कोई सबज बाग नहीं दिखाते, लेकिन आपकी अंदर जो ताकत है उसको हम उजागर कर रहे हैं। मुंह में कतरा पानी का लेकर आई, तो उसे कहा गया कि आपका ये कतरा है क्या करेगा। तो उसने कहा कि मैं तो सिर्फ अपना नाम लिखवाने आई हूँ नेक लोगों में, ताकि मेरा भी नाम इसमें शामिल हो जाए। ऐसा जो पैसा नहीं दे सकते, जो साथ पैसे के हिसाब से नहीं दे सकते, आकर बैठ गया है, तो ये कतरा है वो है जी हाँ। आप आ गए, या आपकी नेकी लिखी जा रही है। अब यहाँ पर यूनिट, अब आप बताएं, थोड़ी सी तकलीफ़ करें उठे कि क्या अभी तक आपने काम कर लिया है। सर मुझे कमर में ज़रा बैठा। तो ठीक है, बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारकर्दगी रिपोर्ट तो बाकायदा हमारे पास तैयार है, हम देंगे आपको जाते हुए। वो तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। सर कहते हैं कि नेकी और वेलफेयर का काम कभी ख़त्म नहीं होता। नेकी और वेलफेयर का काम कभी ख़त्म नहीं होता। ये एक बेबहा समंदर की तरह है, जितना करोगे उतना कम है, लेकिन इससे इंसान को बड़ा ज़हनी और रूहानी सुकून मिलता है। तो जैसा कि सर ने बताया कि आपने क्या किया, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट आज से 4 साल पहले हमारे दोस्तों की काविश से, उनकी हम तक मेहनत की वजह से मौजूद वजूद में आया, और मरकज़ की तरफ से हमारे अब्दुल अजीज़ जनरल सेक्रेटरी असगर साहब यहाँ पर आए, बाकायदा यूनिट का आगाज़ किया गया। तो उस दिन के बाद से वैसे तो बहुत से काम कर रहे थे, लेकिन हमें हमारे अंदर एक यूनिटी डेवलप करने की कोशिश की गई, और हमने कोशिश की कि अपने भाइयों को साथ लेकर चलें। और जो हमारे रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो यूनिट के मेंबर थे वो भी, और पूरी बिरादरी, नवाबशाह रहमानी बिरादरी ने भी हमें, किसी ने इखलाकी तौर पर, किसी ने मोरल सपोर्ट पर, किसी ने माली तौर पर हमारा हौसला अफजाई की। और हमने सबसे पहले काम तो ये किया कि हमने एक लिस्ट मुरतब की कि हमारे
फैमिली का जो रहमानी बिरादरी का डेटा क्या है, कितने लोग यहाँ पर काम पजीर हैं, कितने घर हैं, ये हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया। उसके बाद हमने उसमें सॉर्ट आउट किया कि इसमें कौन ज़्यादा गरीब है, कौन उससे ज़्यादा गरीब है, कौन उससे ज़्यादा, क्लासिफिकेशन की हम लोगों ने। गुड, वेरी गुड। उसके बाद हम लोगों ने देखा ये जितने भी घर हैं इनमें एजुकेशन का क्या रेट है, एजुकेशन कितनी है। कहते हैं किसी भी कौम को अगर संवारना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। तो उसमें भी हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमने कोशिश की। हमारे नवाबशाह में तकरीबन 30% लोग एजुकेशन से बावर हैं बेचारे बहुत गरीब, लेकिन हमने सबसे पहला काम हमने एजुकेशन की तरफ तवज्जो दी। उसके लिए रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट ने, हमारे दोस्त साथी थे, टीचर भी हैं, अभी भी बैठे हुए भी हैं, उनकी मेहनत से फ्री ट्यूशन सेंटर हमने यहाँ पर कायम किया। बहुत अच्छा। बच्चियों के लिए भी, बादशाह साहब बहुत अच्छा, बच्चियों के लिए भी और बच्चों के लिए भी, क्योंकि सर आपके पास भी टाइम कम है, इसलिए मैं इसको बड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह ये हमारा ये काम चलना शुरू हुआ। उसके बाद हमने ध्यान दिया अपने जो बिरादरी के गरीब लोग थे, जिनकी बच्चियाँ अब तक बेचारी बैठी हुई हैं गुर्बत की वजह से, हमने कोशिश करके उनका अभी शादी करें। जो हमसे रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट से काम होगा उनकी माली आनत कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मकसद में भी काम हुए। हम ये तो नहीं कह रहे सबकी शादियाँ हमने की, थोड़ा थोड़ा, जैसे वो सदर हमारे यैया भाई ने कहा कि चोंच का हमने कतरे पानी डाला, उसमें भी हमने नेकी डालकर उसमें भी हमने नाम कमाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमने बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की। उसके बाद जब भी किसी हमारे रहमानी भाई को ज़रूरत पड़ी, किसी भी दफ्तर काम में अफसर वर्क हैं, और दूसरा सबसे बड़ा काम तो ये है कि लड़ाई झगड़ाई है आजकल, थोड़ी थोड़ी बात पर लड़ना झगड़ना, वो थाने में चला जाना, एक गरीब के ये मसाइल, ये बड़े मसाइल समझना। वो हम लोगों ने कोशिश की, उसमें गरीब इमरान भाई, मेरे यूनिट चेयरमैन भाई, नदीम भाई, शाह नवाज, लियाकत, इन लोगों ने सर तोड़ कोशिश की। ज़रा सी भी कोई बात रहमानी भाई के साथ होती थी, फ़ौरन ही जाते थे, उनकी हेल्प कानूनी तौर पर हेल्प करते थे और मेडिकली तौर पर मैं उनकी हेल्प करता था, समझे ना। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये असर हुआ कि लोग हमारी मिसालें देने लगे। फिर दूसरा काम ये था, गमी खुशी भी हर कौम का एक हिस्सा है। तो जो गमी खुशी का टाइम होता था, हम देखते थे कोई गरीब आदमी है तो नहीं कर सकता, उसके लिए हम अपन कहते हैं ना मर्ग की रोटी देना, जी जी, वो भी हम लोग कोशिश की। बहुत अच्छा। सबके लिए नहीं, कुछ जो कुछ समझे ना। हाँ, मैं खाम खाई बातों से पा रहा हूँ, होता है साथी हमारा रहमानी वेलफेयर से ना। हाँ, वो बता रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रहमानी वेलफेयर का कोई भी बेचारा बिरादरी का बंदा है, बच्ची फोत होती है, बड़ा बुजुर्ग छोटा जो भी फोत होता है, उसके लिए कब्रिस्तान में जाकर कब्र की खुदाई करना, और हमारे वॉलंटरी तौर पर सारे जाते हैं। उसमें इमरान गरीब भाई उसका हेड है, और वो बड़ी मेहनत करके उनके हम कब्र खोदते हैं मिट्टी के साथ, क्योंकि हमारे बड़े जो थे वो मिट्टी का ही काम करते थे। हाँ हाँ हाँ। तो एक साथी ने पूछा है कि हमारा साथी कब्र खोद कर आ रहा था, वो मिट्टी में भरा हुआ था। हाँ, तो उसने, अरे भाई तू कहाँ कड़े से आया है, मैं अपनी ज़ुबान में बता रहा हूँ। बोला आप कहाँ से आए हैं? बोला मैं कब्रिस्तान का आया हूँ। बोला क्या काम करता है? बोला कब्र खोद कर आया हूँ। बोला तू कब्र खोद है? बोला तू खुदवाई दो, तेरी खोद दूँ। तो ये बात है, हम आर नहीं समझते, हमारे बच्चे बड़ी शौक़ से काम करते हैं। और दूसरा, कोई शादी मुरादी होती है तो उसमें हमारे मेंबर जो है, यूनिट मेंबर हैं, वॉलंटरी तौर पर अपने उस दिन एक ड्रेस हम कह देते हैं ये ड्रेस आपने पहन कर आना, सब आएंगे और वहाँ पर काम कराएंगे। इमाम गरीब की लगा देंगे हम जगहों पर ड्यूटी, किसी की जो जिसके हिसाब से होता है उसे ड्यूटी लगाते हैं, उसके काम हम संभालते हैं। और हमने डेकोरेशन का भी हमने सर बंदोबस्त किया हुआ है। इसकी प्लेटें आपके सामने ही पड़ी हैं। तकरीबन हमारा 400-500 आदमियों का डेकोरेशन का बंदोबस्त है, जिसमें प्लेटें भी हैं, जग भी हैं, डिशे भी हैं, डोंगे भी हैं, टैंकियाँ भी हैं, कालीन भी हैं। कमाल है, कमाल है, कमाल है यार, कमाल है। तो अच्छा, ये हमारे उसका इंचार्ज हमारे इमरान गरीब भाई है, कहते हैं भाई आप हमें पहले बता दें, मौत मैयत में तो अचानक होती है, उसको तो हर टाइम उसके लिए ओपन है, किसी टाइम भी 24 आवर ऑन कॉल होते हैं हम लोग। उसके बर्तन जाते हैं, दरिया वरिया पहुँचाते हैं, बिछा कर भी आते हैं, और
इस डेकोरेशन के लिए हमने ये रखा हुआ है कि हम कोई फ़ीस नहीं लेते, हम उनसे लेते हैं जिसके घर में अगर शादी है उससे हम 500 रुपये लेते हैं, तो वो सारा सामान ले जाता है। उसको यही कहते हैं इस शर्त पर हम आपको 500 रुपये देंगे ताकि आप हमें जिस कंडीशन में लेकर जा रहे हैं उसी कंडीशन में हमारा डेकोरेशन का सामान वापस आना चाहिए। बहुत अच्छा। और उससे कभी हम पाई पैसा नहीं रखते, वो वापस कर देते हैं लोग ना। और तीसरा ये सोशल सर्विसेज के हवाले से हमारे साथी बेचारे तो कोशिश करते हैं कि वो खिदमत करें। हम लोग ईद त्यौहार का जो टाइम आता है, ईद हो, बकरा ईद हो या कोई खुशी का मौका हो, तो उसमें हम लोग पैकेज देते हैं। अच्छा, ईद पैकेज के नाम से है, उसमें जोड़े भी होते हैं और ईद का राशन भी होता है। ठीक है सर। और जो कुछ गरीब होते हैं उनको हम कैश के लिफाफे भी उनके साथ देते हैं। हम क्या बात है। समझो, ये मैं करता मैं हूँ लेकिन देता मेरे साथी भी देते ना। हाँ, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरा ही होता है लेकिन सारे साथी हम मिलकर चलते हैं, तो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाता है। और उसकी खबर किसी को नहीं होती। रात को जाते हैं अपने हिस्से के जिनको भेजा भी, तेरे इलाके में ही है, तेरे इलाके में ही है, आपके इलाके में है, उनके घर पर जाकर अंधेरे में जाकर देकर आता है ताकि किसी की नफ्स कसी ना हो, इज़्ज़त नफ्स को कोई धचका ना लगे। तो और दूसरा ये कि जब भी कोई हमारा साथी किसी मुसीबत में या किसी उसमें घड़ी में आ जाता है या किसी भी वजह से कुछ होता है, तो कोशिश ये करते हैं हम सारे सर जोड़ कर बैठते हैं भाई इसके साथ ये क्यों हुआ। ठीक है। और दूसरा हमने अपने वेलफेयर के हवाले से मेडिकल कैंप मेरे पास हर मंथली बेसिस पर वेलफेयर के नाम से चल रहा है मुस्तकल। और फिर मोबाइल कैंप हमारे चलते हैं। क्या बात है। हम बांदी भी गए, मेडिकल कैंप किए, मोरो भी गए, मज़ाफ़ात के जो इलाके वहाँ पर भी जाते थे। और जब ये हमारे पास सैलाब का डिज़ास्टर आया था तो उसमें भी मेरे सारे जो साथी थे, एक मुजाहिद की तरह, एक सिपाही की तरह मेरे साथ थे। हम जाते थे तो सुबह निकलते थे, अपनी गाड़ियाँ, कोई चिंची लेकर आ रहा है, कोई गाड़ी लेकर आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल लेकर आ रहा है, जो अफेक्टेड थे, मुतासिर थे। पहले तो उनके राशन का सप्लाई का था, क्योंकि रिहेबिलिटेशन करने के लिए भी मुख्तलिफ स्टेज होते हैं। हाँ, सबसे पहले उसकी भूख का इलाज करना ना अपने, उसके बाद उसकी सेफ जगह उसको मुंतकिल करना। ये सारे हमारे साथ जाते थे, हम अपनी जेब से खर्च करते थे। उससे हम ऐसे उन हालात में जो हालत थी सबकी, सारे यहाँ पर खौफ ज़दा थे, एक पैनिक का खौफ का एक आलम था। उस हम लोग सारे फिर गए, अब अपने अपने दोस्तों साथियों ने, हमने सब ने अब राशन जमा किया। कोई कुछ ला रहा है, कोई आलू ला रहा है, कोई टमाटर ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। वो सारे हमने जमा करके गरीब इमरान के घर में, मेरे घर में या हमारे अनवर भाई हैं, इनके घर में बैठकर हम लोग उसको पैक करके हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। फिर उसमें हम टीमें बना देते थे, भाई 5 आदमी उस इलाके में चले जाएँ, 5 आदमी उसमें चले जाएँ। तो इस तरह हमने किसी पर एहसान नहीं किया। ये हमारा दर्स हमें जो मिला था उस पर हम अमल कर रहे थे। तो ये दर्स किसने दिया? मेहमानी वेलफेयर ट्रस्ट वालों ने दिया, उनके कायदीन ने दिया, हमारे चेयरमैन ने दिया, जिस पर हमने अमल करते हुए। और हमारे चेयरमैन साहब ने फिर नकदी भी भिजवाई, 3 लाख रुपए नगद कैश। चेयरमैन साहब ने 1 लाख रुपए हमारे चेयरमैन सदर तारिक महमूद साहब ने दिए हैं। और वो हम लोगों ने बाकायदा, सर का नुमाइंदा आया था, इस्लामाबाद से नुमाइंदा आया था, वो 4-5 दिन हमारे पास रहा। उसकी मौजूदगी में हम वो डिस्ट्रीब्यूशन की। सर ने कहा भी राशन लेकर देना है। फिर हमने बोला राशन लेकर देना आपने, जो मुतासरा इलाके हैं। फिर वहाँ पर कैंप भी लगे। उसके बाद फिर जैसे भी ये आपने देखा ट्रेन हादसा हुआ था नौबशाह में, अंधुनाक ट्रेन हादसा हुआ था। वो 1:40 पर सर वो हादसा हुआ और मुझे इतला मिली। नदीम हमारे भाई एक्स प्रेसिडेंट है, उन्हें बोला शफी भाई ऐसे हो गया। तो हमने सर 2 बजे हम सारे इकट्ठे हो गए और जो भी हमसे हो सका हमने निकले। हमने अपनी गाड़ी में हमने पानी पर हम मिनरल वाटर भरे, बिस्किट भरे, खीर के डब्बे वगैरह डाले, फिर चिंची में डाले, हम चले पहुँच गए। वहाँ पर जाकर देखो तो वहाँ आलम ही दूसरा, लाशें कटी हुई हैं, हालत ख़राब है, कोई
नफ्सा नफ्सी का आलम लगा पड़ा है। एक तो जो मर गए वो तो मर गए, और जो बेचारे ज़िंदगी मौत में मुब्तला हैं उनको भी हमारे साथियों ने दोस्तों ने शिफ्ट कराया, दूसरी मुनासिब जगह भेजा। फिर उनको ट्रांसपोर्ट का मसला, अस्पताल शिफ्ट कराना। जालिम लोग ऐसे, तो कोई मदद करता है कोई बस, लेकिन हमारा माशरा ऐसा होता है। तो वो जहाँ 500 रुपये कराया था वो 3-3 हज़ार रुपये उनसे मांग रहे हैं। हम लड़ रहे नहीं भाई, फिर हमने करार कर दिया हमको। और जो बेचारे मुसाफिर सही थे पैसेंजर, उनको ट्रेनों पर पहुँचाया। तो अस्पताल में भी हमने खून की बोतलें दी, हमारे साथियों ने गए, राशन दे के हमने बनवाए, राशन जाकर देते, अस्पताल में फ्रूट वगैरह देते थे। तकरीबन 5 दिन तक हम लोग इस तरह से मुसलसल चलते रहे। इसमें यूनिट बांधने वाले बेचारे वहाँ पर, क्योंकि हादसा तो यहाँ पर होगा, लेकिन ट्रेनें कोई शहजादपुर खड़ी हुई है, कोई बांदी में खड़ी है, कोई कहाँ खड़ी है, तो उनके पैसेंजरों का भी करना ना। तो वहाँ पर भी हम हमारे वेलफेयर वाले पहुँचे। तो सर किस्सा मुख्तर ये है कि हमारे यहाँ वेलफेयर आई हॉस्पिटल है, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। तो हम यहाँ पर अपने बिरादरी के होते हैं ना, उनके हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेंस भी ऑपरेशन भी कराते हैं। बहुत अच्छा। और दूसरी गैर कौमों वाले हैं उनके भी हम कराते हैं। ये बात नहीं कि नहीं, अब स्टिक्स होती हैं, बैसाखियाँ होती हैं, माजूर बच्चे होते हैं, उनको नवाबशाह रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट अपनी तरफ से नहीं, कोई ताल्लुकात समझ लें और इसी तरह उनकी मदद कराते हैं। नाम हमारे रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का होता है। व्हील चेयर दुला दी, उनको स्टिक दुला दी। तो ये काम कर रहे हैं सर, और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस काम में इस्तकामत दे और मज़ीद आगे बढ़ते जाएँ, और हमें आपस में इत्तेहाद का अल्लाह ताला हम पर जो एक रस्सी छोड़ी है ना भाई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं रस्सी छोड़ रहा हूँ, थामे जाना है। 2 चीज़ें आपके अंदर छोड़ रहा हूँ, कुरान शरीफ हो रही है। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, मदरसे का जो चलेंगे क्या करना है मदरसे। अच्छा, अफ्तार करना है। हाँ, वेरी गुड। बैठे बैठे, अब बस खाना खा लें। मैं नहीं बैठे बैठे, अभी बात नहीं है। बैठ जाएं। अच्छा, अब ये जो शफी साहब ने माशाल्लाह बताया, ये हमारी सोच से ज़्यादा इन्होंने काम कर रहे हैं। सब बैठे हुए हैं, सबके सामने हुआ है। अब यया साहब, जुल्फ़कार साहब, आसिफ साहब सांगड़ वाले और उमरकोट वाले, आप लोग आए हैं स्पेशल। अब ये देखें ना, शफी साहब को सिर्फ एक आइडिया हमने दिया, हम आए, जैसे अभी आपके पास भी जाएंगे और आप हमारे पास सुनने आए हैं कि आप सब के अंदर अल्लाह ताला ने ये बिल्ट इन किया हुआ है, बनाया हुआ है, लेकिन उसको सिर्फ ऐसे करके जगाने की ज़रूरत है। अब आपसे ये गुजारिश है, पहली बात को आपको डर खौफ है कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट हमें कुछ नहीं देगा, क्या देगा, हम ऐसे टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हमें क्या हासिल होगा। ये इंसान की हर इंसान की, मेरे समेत खुद गर्जी है। क्या मुझे ख्याल आएगा कि मैं जा रहा हूँ नवाब शाह, तो मुझे क्या वो देंगे, और आप सोच रहे होंगे कि चेयरमैन आ रहा है, बड़ा नाम बना हुआ है रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का, हमें क्या देगा। और हम हर चीज़ को आखिर में आकर नोटों में तोलते हैं। अगर नोट मिल जाए या खाने को मिल जाए या पहनने को कोई चीज़ मिल जाए तो हम समझते हैं हमें कुछ हासिल हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हमें हासिल होती हैं उसको हम ना गिनती करते हैं, ना उसको हिसाब किताब में लाते हैं। तो शफी साहब ने कहा कि जी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का हमें क्या दे रहा है या क्या देगा। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट आपको, जो सबसे पहले मैंने बात की है, डर खौफ आपका कुछ हद तक ख़त्म करेगा। फुल नहीं, फुल तो अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने पूरी कायनात बनाई हुई है, और हम खुदा बनने का सोच का दूर की बात है, हम वो सोच नहीं सकते कि अल्लाह ताला चाहे तो सबको एक जैसा कर दे, सबको, गरीब अमीर को, लेकिन उसने एक सिस्टम में बनाया हुआ। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट सबसे पहले आप लोगों का थोड़ा सा खौफ ख़त्म करेगा कि पहले आप रहमानी कहलवाने के लिए डरते थे, और मैंने तो अभी इस पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ,
جو بندہ بھی دل و جان سے ویلفیئر کا کام جس نے شروع کر دیا ہے، بے شک تھوڑا سا اب ان کا ڈر ختم ہو گیا ہے کافی حد تک۔ وہ جا کر باقاعدہ تعارف کراتے ہیں کہ ہم روحانی ہیں۔ اور پھر میرے پاس اصغر صاحب کے پاس ویڈیو ہے، میں نے پروگرام کیا تھا گجرانوالہ میں، اور جیسا ابھی آپ سب کا تعارف کیا ہے، ہر بندے سے میں نے ریکارڈنگ کرائی تھی کہ آپ کو رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ آنے میں کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا۔ سب نے 3 باتیں لازمی کی تھیں کہ ہمیں پہچان ملی، ہمیں عزت ملی۔ جہاں بھی جاتے ہیں تعارف کراتے ہیں کہ ہم رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ سے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو وہاں عزت کرتے ہیں۔ تو بس اسی لیے دنیا میں ہم مرتے ہیں، یہی ہمارا خوف ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ دیکھنا کہ رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ سب سے پہلے آپ کو عزت نفس اور خوف ختم کرے گا، جو سب سے بڑا کام ہے، جو عام آدمی جتنے بھی سیاستدان ہیں، جتنے بھی نوٹوں والے ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ جتنی بھی جماعتیں ہیں، خواہ وہ دینی جماعت ہے، خواہ دنیاوی جماعت ہے، وہ بھی یہ اس کی تعلیم نہیں دیتے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ہمارے ساتھ چلو، ہم اسلامی قانون نافذ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم سوشلزم لاتے ہیں، لیکن ہمارا خوف ختم کوئی نہیں کرتا۔ لہذا میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو خوف ختم، اس کے بعد اب اس میں کچھ ڈرتے رہیں گے، کچھ کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، وہ پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ سب نے جو جیسے یہ مثال ہے، ابھی دیکھ لیں، اوپر سینٹر چل رہے ہیں، آپ دیکھ کر آئے ہیں، شفیع صاحب اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہے ہیں۔ آج تک ہم نے ان کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا سوائے باتوں کے، بلکہ الٹا ہم آج آئے ہیں تو خرچہ ان کا کرا کر چلے جائیں گے۔ تو اس میں بھی یہ جو ابھی آج خرچہ ہو رہا ہے، یہ صدقہ ہے، اور حدیث مبارک کے مطابق بڑے آدمی کو گھر بلا کر کھانا کھلانا وہ بھی صدقہ ہے۔ تو آج آپ جتنے بھی آئے ہیں، یہ ہمارا رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کا، ڈاکٹر صاحب کا، باقی دوستوں کا، جنہوں نے بھی ساتھ دیا ہے، صرف بات تک ساتھ دیا ہے، ڈاکٹر صاحب وہاں آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ ان کا بھی صدقہ ہے۔ بے شک جا کر کسی مولانا صاحب سے فتویٰ لے لیں۔ ابھی جو آپ بیٹھے ہیں، جب تک آپ بیٹھے ہیں، آپ نے سب کی ایک ہی سوچ ہونی ہے کہ ہم رحمانی ہیں اور ہم کٹھے بھائی بیٹھے ہیں، اور یہاں پر ابھی جب تک آپ بیٹھیں ڈر خوف اتار کر بیٹھیں، ابھی ہمیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم سارے ایک جیسے رحمانی ہیں سارے۔ لہذا پہلا کام یہ کریں، خوف اتاریں۔ پھر اگلی بات ابھی یہ ہے کہ